By the end of this video, you will have a guide on how you can score 180 on 180 in physics and how you can do it effortlessly. Before we begin, I want to tell you guys that I scored 175 in my NEET and I want you guys to get 180 out of 180. I have done a lot of research for this video. I actually had to do a deep dive into my NEET days and see what actually works, see what actually does not work, and this is how you are exactly gonna do it. When it comes to physics, approach is everything, and approach is what differentiates someone who gets good marks in physics and someone who's not selected because of having weak physics. Until the day you give NEET, just remember this one thing. Physics is difficult, but NEET physics is easy. Do you guys know what's common between physics and talking to girls? Confidence is everything, and when it comes to confidence, you need practice. Beginning with the approach. When it comes to medicine, physics is everywhere. Whether you're giving an injection to a patient, whether it is your x-rays or any kind of modern scans, whether it is a patient who is coming to you in the emergency and you need to give him a shock, everything is physics. And to truly understand and to truly save a patient, you really need to master physics. When you put your phone away and look into the real world around you, you will actually see physics applied everywhere. Whether it is the moon controlling the waves, whether it is a cycle wala taking a turn, whether it is a cricketer hitting a shot, everything involves physics. And literally ऐसे type of questions आते हैं. And the reason why curiosity is so important is because you're gonna study physics a lot, and अगर वो चीज़ तुमको पसंद नहीं है, you will be able to do it only for a limited amount of time and you will only be able to give a limited amount of energy to you. Imagine अगर वही टाइम पे you like playing video games and कोई तुमको video games ला के दे दे, you will play video games for a long time because that's what you like to do. So if you find your game, you find play in physics, then it is just wonderful. And this curiosity वाली चीज़ सुन के तुम बोलोगे कि हाँ curiosity बढ़ाने से marks थोड़ी ना आएंगे. Well, हमारे NEET में एक क्वेश्चन आया था कि जब बारिश गिरती है तो व्हाट साइड ऑफ द सन डू यू सी द रेनबो, कि सन के सेम साइड में रेनबो दिखता है या सन के ऑपोजिट साइड में रेनबो दिखता है. एंड वो टेंशन एंड पैनिक वाले NEET एग्ज़ाम वाले मोड में आई जस्ट क्लोज माई आइज़. मैंने इमेजिन एंड मैंने विजुअलाइज़ किया. जब मैं छोटा था तब मैं ग्राउंड पे जाता था वहाँ पे खेलने के लिए, एंड जब भी वहाँ पे बारिश होती थी देयर यूज्ड टू बी सन ऑन वन साइड एंड दूसरे साइड पे देयर यूज्ड टू बी अ रेनबो. एंड वो इमेज मेरे दिमाग में इतना क्लियरली आया कि आई इमीडिएटली मार्क द आंसर. एंड तुम्हारे साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है. एंड देर आर न्यूमरस ओकेजन्स वेयर मैंने अपने प्लेन बेसिक जनरल नॉलेज और प्लेन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की वजह से क्वेश्चन सॉल्व किए. एंड इजंट इट एन अमेजिंग थिंग, मेरे बचपन की मेमोरीज अभी मेरे काम आई. एंड कितने लोगों ने रेनबोज देखे हैं इन देयर लाइफ एंड कितने पीपल हैव ऑब्जर्व्ड द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेनबो, बट टू बी एबल टू कोरिलेट इट इन द एग्जाम इज जस्ट अनदर थिंग. एंड I think observation played a key role and it drove the thought process that helped me crack that question specifically. Now let me give you some practical real life resources and tools. So when it comes to physics, listen to your teachers with an open mind, especially वो classes के teachers जिन्होंने पहले बहुत अच्छे results लाए हैं, लाइक फिज़िक्स वाला. इन लास्ट ईयर जब फिज़िक्स वाला ने अपना ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया था, सब लोग को ज्वाइन करना था बट सीट्स इमीडिएटली फुल हो गए थे. इस साल भी आई थिंक सेम सिचुएशन है. पेरेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड, 15 आवर्स ऑफ डाउट रेजोल्यूशन. मैंने देखा है इतना कौन पढ़ाता है भाई. Anyway, physics वाला है and this video is about physics, तो I thought I would let you know that अपने सीट्स फटाफट बुक कर लो. 13 अप्रैल से बैचेस शुरू हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो. एंड इफ़ यू वांट 90% स्कॉलरशिप यू कैन गिव दी SAT एग्जाम. एंड इतने अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन इतने अफोर्डेबल प्राइस में किधर भी नहीं मिलेगा. सो एक्ट फास्ट बिफोर सीट्स फिल हो जाए. फिज़िक्स को हम डिवाइड करेंगे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स में. उसमें भी हम फिज़िक्स को डिवाइड करेंगे यूनिट्स में. यूनिट्स सच एज ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं. एंड उन यूनिट्स में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एंड उन चैप्टर्स में सब टॉपिक्स है.
and subtopics are all about concepts. So to truly understand your concepts well, you should read the book HCV, you should watch all of your lectures or attend all of your lectures properly, you should make notes, and you should see all the solved examples, especially in books like HCV. एंड उसके बाद तुम HCV सॉल्व करोगे. HCV इज़ डिफ़िकल्ट एंड HCV में जो क्वेश्चंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी तक जाते हैं. सो वी विल सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बट वी वोंट सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस विच हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कंपोनेंट टू देम. बट जब तुम वो सॉल्व करते हैं एंड यू स्पेंड आवर्स सॉल्विंग वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, you've not wasted your time, but in the same process you've thought about the same concept over and over again. You've thought about how you're gonna approach a similar question if it comes, and wo thought process, wo thinking makes your concept stronger. And next time, even if you are going to appear for an MCQ exam, these concepts are gonna stay with you and they are gonna help you solve MCQs. The next thing that you're gonna do is solve an MCQ book, that is DC Pandey. एंड दिस इज़ you're gonna go chapter wise. एक चैप्टर लिया, उसका HCV सॉल्व किया, उसका DC पांडे में सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के वो बुक पूरा सॉल्व किया. एंड बाय सॉल्व करना, आई एम नॉट सेइंग कि तुम बस आंसर टिक करके यू विल मूव ऑन. तुम एनालाइज करोगे कि हाउ यू कुड हैव सॉल्व्ड इट बेटर. ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल एनालाइज व्हाट कॉन्सेप्ट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट, व्हाट इज इट दैट he can ask. if एक variable पूछा है तो दूसरा वो पूछ सकता है, and various other things that you will only understand by solving. The third thing that you're gonna focus on is previous year questions, because these are the questions that are gonna be repeated. Every single entrance exam is based on the fact that history repeats itself. एंड बाय हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम क्वेश्चन वापस आएगा, बट द एग्जामिनर इज गोना टेस्ट द सेम कॉन्सेप्ट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ वे. तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, स्पेशली फ्रॉम द PYQs, यू आर गुड टू गो. एंड स्पेशली अगर you are still feeling weak or not confident about physics, you can go to the PYQs. and अगर पढ़ते समय तुम लोग को लग रहा है कि ये हायर लेवल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमको आएगा ही नहीं, simply go to the PYQs. and अगर वो similar type of questions है तो you are just making excuses. but अगर similar type of question नहीं है तो you can leave it and you can move forward. Of course, I had solved the past 30 years के MCQs during my knee. And after all of this, if you're still not feeling confident, if you feel like you need more practice, you can solve a module of any coaching. I had solved the Allen module and it really helped me a lot. उसमें सब कुछ systematically दिया हुआ है, and solved examples के साथ there are questions also, so you can solve that as well. You're gonna have this kind of system for each and every chapter. तो एक बड़ा सा चार्ट बना के रखो, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, उसके बाद HCV, DC पांडे, मॉड्यूल, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स, ऐसे एक कॉलम बनाओ. एंड जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे वैसे वैसे टिक मार्क करते रहना, सो दैट हर चैप्टर के लिए अप्रोच सेम होगा एंड यू नो हाउ टू टैकल ईच चैप्टर. एंड बाय द एंड ऑफ इट यू विल ऑब्वियसली बी मोर कॉन्फिडेंट, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ टेस्ट मैच. सो विराट कोहली को एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं. सो विराट कोहली का कवर ड्राइव स्ट्रॉन्ग है बट बाउंसर वीक है. तो जब भी वो नेट्स में जाएगा, ही इज़ गोइंग टू प्रैक्टिस बाउंसर बिकॉज ही नोज दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गेट हिम आउट. द सेम अप्लाइज टू फिजिक्स. जितना तुम्हारे वीक एरियाज है उतना दे आर गोना प्रिवेंट यू फ्रॉम स्कोरिंग वेल. सो अगर तुम अपने वीक एरियाज पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से या ज़्यादा राइट आंसर्स आने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सूडो कॉन्फिडेंस आता है. व्हेन यू एक्चुअली वर्क ऑन योर वीकनेसेस, यू ओवरकम देम, तभी रियल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस you want to take with you in exams. This point is so critical that I'm gonna repeat it again कि अपना जो भी वीक एरिया है बार बार उसको टारगेट करो, बार बार उसको पिन पॉइंट करके उसको इम्प्रूव करो, उसके ही क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो. एंड ये पूरे जर्नी में टॉपर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा कोई डाउट आए तो टॉपर के पास जाना, but just observe the topper of your class, how he is approaching questions, how he is paying attention in the class, how is he making his formulae sheets, what books is he solving,
what tricks and tips is he using in order to find the solution. अगर उसने कोई क्वेश्चन में विदाउट सॉल्व किए he's come to an answer and he's got it correct, just देखो उसको, observe करो and you will get to learn a lot from him. And you know, I've literally done that. I used to sit amongst the toppers of my class. I didn't score as high as them, but definitely like I could learn from them, and I implemented a lot of the things in my studies as well. Now it's gonna come to mock tests. A lot of people say कि 12th में आने के बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट देना. मैं बोलूँगा तभी फुल सिलेबस टेस्ट देना. मॉक टेस्ट तो तुम कभी भी दे सकते हो. 720 मार्क्स का टेस्ट होगा. एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसमें थोड़े चैप्टर्स फिजिक्स, थोड़े चैप्टर्स केमिस्ट्री, थोड़े चैप्टर्स बायो, ऐसे वो लोग कवर करेंगे. एंड तभी विल बी द ट्रू टेस्ट कि जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दे आर टेस्टिंग टुगेदर और मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक के बाद एक अलग से आ रहे हैं. आर यू एबल टू अडेप्ट, आर यू एबल टू चेंज. एंड ये मॉक टेस्ट देने से तुम्हारी एग्जाम स्ट्रैटेजी पे भी काफ़ी फ़ायदा होगा. बिकॉज कभी तुम बायो फर्स्ट सॉल्व करोगे, कभी तुम फिजिक्स फर्स्ट सॉल्व करोगे, कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इमीडिएटली अप्रोच करोगे, कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को एंड में डालोगे. ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ खेलने के बाद यू विल रियली अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड उस हिसाब से तुम अपनी एग्जाम अप्रोच स्ट्रैटेजीज बनाओगे. एंड आई फील कि it will help you so much in managing your time, managing your stress, managing your energy during the exam, because energy, each and every bite of energy is very crucial. And when you solve these kind of tests, make a solution book, don't make a mistake book, because कभी कभी हमारे तुक्के लग जाते हैं. कभी कभी हम एग्जाम मोड में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स का कॉपी करके भी आंसर लाते हैं. बट वॉट एवर इट इज़, सोल्यूशन बुक बनाओ एंड you have to be able to explain why you got it right. And जब भी तुम अपने टेस्ट्स रिव्यू करोगे, तुम्हारा खुद का सोल्यूशन बुक जो तुमने अपने लैंग्वेज में बनाया है वो तुम्हारे साइड में होगा. एंड जब भी टेस्ट होगा, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड एज टॉपर्स से, MCQs are not about getting the right answer, it is eliminating the wrong options. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस इज़ वॉट MCQs आर गोना मेक यू डू, स्पेशली मॉक टेस्ट्स आर गोना मेक यू डू. एंड प्लीज़ मेक योर रिविजन बुक. अब मैंने आई टोल्ड यू अबाउट वाई यू शुड गिव योर मॉक टेस्ट्स एंड हाउ यू शुड गिव योर मॉक टेस्ट एंड वॉट यू शुड डू आफ्टर गिविंग योर मॉक टेस्ट. नाउ आई एम गोना टेल यू वॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी बिफोर योर मॉक टेस्ट्स. सो तुम लोग ने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेक योर ओन फॉर्मूला बुक, बट तुमने ये नहीं सुना होगा कि हाउ टू मेक योर फॉर्मूला बुक. सो आई एम गोना टेल यू हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू मेक योर फॉर्मूला बुक. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर देन दिस डज नॉट काउंट फॉर यू. एंड थोड़े मंथ्स बाद आके ये सेगमेंट वापस देख लेना. बट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस सेगमेंट राइट नाउ. So suppose you're studying gravitation and you're making a formula book for gravitation. So gravitation में often times ऐसे question होते हैं कि G above earth, G inside earth, ऐसे questions पूछते हैं. And उसके लिए a lot of people have derived how you can go to the formula, and a lot of people have given the formula directly. तो अगर ये करना है तो you will have to remember 3 formulas separately. And अगर तुमको ये नहीं करना, यू विल हैव टू रिमेंबर 1 फॉर्मूले, बट ऑल्सो यू विल हैव टू गेट टू द डेरिवेशन इन द एग्जाम. सो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं, डिफरेंट चैप्टर के लिए डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती है. सो अगर तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच ले रहे हो और एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको डिराइव कर रहे हो, सो पुट दैट डेरिवेशन इन योर फॉर्मूला बुक. बट अगर तुम डायरेक्टली अगर सीधा वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो पुट दैट फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला बुक. नो वे इज करेक्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वॉट यूर रियली गोना यूज. अगर मैं डिराइव करने वाला हूँ एग्जाम में एंड डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अपने फॉर्मूला बुक में रखा हुआ है, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी. एंड अगर मैंने डेरिवेशन रखा हुआ है एंड एग्जाम में आई एम नॉट एबल टू डिराइव, आई विल नीड द फॉर्मूला. सो एवरी वन इज डिफरेंट एंड एवरी चैप्टर इज डिफरेंट. कोई चैप्टर के लिए मैं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये कर सकता हूँ, कोई चैप्टर के लिए मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए मैं ये नहीं कर सकता. सो एवरी फॉर्मूला बुक इज पर्सनलाइज्ड एंड दिस इज वाई यू शुड मेक योर ओन फॉर्मूला बुक, एंड दिस इज वाई यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर physics, and this is a one of a kind video. I'm not gonna keep spamming my channel with NEET UG videos. I'm just gonna give you videos that truly provide value to your preparation, and
I'm gonna make one video for bio and one video for chemistry also, and I'm really looking forward to your response on this video. I will see you guys in the next one. Thank you so much for watching.